Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So, are you enjoying your holidays along with your work? Okay, so students, welcome to GK class once again. And today I am with you all again to start with your GK syllabus. Okay, so let's begin with it first. Okay, so everybody kindly open your books at page number 17, that is body works. Okay, so today we are going to discuss a chapter that the name of the chapter is body works. B-O-D-Y, body works. Page number 17. The name of the chapter is body works. What is the meaning of body works? बॉडी वर्क्स का मतलब होता है बेटा कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है. हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, यू नो देयर आर वेरियस पार्ट्स इन अवर बॉडी एंड हुज फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, हर जो बॉडी पार्ट की जितने भी पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, they all are different from each other and their work is also different, their function is also different. जैसे कि from nose we breathe, from mouth we eat, we talk, okay, from tongue we taste. Okay, there are several parts like this. Okay, so हम उसी बारे में आज डिस्कस करेंगे किस किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है. Okay, how they works and what are the various sub parts present in that part. Okay, so let's begin with page number 17, that is body works. Okay, so open your books at page number 17, body works. Clear? So let's begin with it. Use the clues to identify the terms associated with our body. Okay, so in this chapter, as you can see on your books, that clues are given. जैसे कुछ जो words हैं, उनके कुछ clues दिए हुए हैं, मतलब कुछ words लिखे हैं and some are missing also. So we have to find out the correct spellings, मतलब correct organ और correct part, जो name of the correct part जो कि उससे associated है. Okay, so clues are given and we are going to find the correct answer. Clear? With the help of the clues. Okay. So the first one is, this muscle is present at the bottom of your arm. Yes, जिस मसल की हम बात कर रहे हैं वो हमारी आर्म, हमारी जो हाथ है इसके बॉटम पे, सबसे बॉटम पे, सॉरी एट द टॉप, नॉट द बॉटम, सॉरी, दिस मसल इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ योर आर्म. सो दिस आर्म इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ, ये हमारी जो आर्म के सबसे टॉप पे है. The muscle we are talking about, that is present at the top of our arm. हमारी टॉप, जो हमारी आर्म है, ये जो हमारी बाजू है, इसके टॉप पे कौन सी मसल है, इसको हम क्या बोलते हैं? यस, जिसको आप डोले भी बोलते हो. व्हाट वी कॉल दैट? वी कॉल दैट बाइसेप्स. वी कॉल देम बाइसेप्स. ओके, सो राइट डाउन द करेक्ट आंसर. एंड यस, एज यू कैन सी दैट कुछ जो वर्ड्स हमारे पास क्लूज में दिए हैं, दे ऑल आर इन कैपिटल लेटर्स. So that means जो बाकी words हैं that also you are going to write in the capital letters only. Okay, जो बाकी clues दिए हैं वो capital letters में दिए हैं बेटा. तो इसलिए जो बाकी words हैं, जो clues में आपको लिखने हैं या blanks में जो आपको लिखने हैं, वो आपको capital letter में ही लिखने हैं. Clear? ये नहीं कि small letters में लिखना शुरू कर देंगे आप. Clear? So let's begin with the first answer. The answer of first is B is there, dash, C dash S. So the answer is biceps. B-I-C-E-P-S. Biceps. So the answer is biceps, जिसको हम डोला बोलते हैं, जिसको हम डोले बोलते हैं ना, biceps जो होते हैं. Okay? So this muscle is present at the top of our arm. जो हमारा हाथ है उसके टॉप पे जो मसल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? biceps. Clear? So moving next to the second one, this is the opening through which light can enter your eyes. देखिए आपकी आईज है, जो इसमें जो लाइट्स आती हैं, जैसे मतलब जो भी हम देख पा रहे हैं या जो भी रोशनी सूरज की आ रही है, अभी जैसे मैं रूम में खड़ी हूं तो रूम की जो रोशनी आ रही है, वॉट एवर, ओके, ये सब हमारी आईज में कैसे हमें नजर आ रही है जी, मतलब ये हमारी आईज में कैसे एंटर हो रही है. ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, द क्लूज आर P dash L.
ओके, सो ये हमारे पास ऑप्शंस क्लूज में दिया हुआ है। सो जो आईज है, जो हमारी रोशनी है अगल बगल, जो कोई भी रोशनी है वो हमारी आईज तक कैसे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ दिस प्यूपिल्स। जो हमारे आईज में जो ब्लैक पोर्शन है इसको हम प्यूपिल्स बोलते हैं। ओके, सो द आंसर इज प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल। क्लियर? सो द आंसर इज प्यूपिल। प्यूपिल बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे नहीं, ये आईज वाला प्यूपिल है। दिस इज द ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन, दैट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई। जो हमारी आई में कलर्ड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई, व्हाट वी कॉल इट? द क्लूज आर डैश R डैश S। द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई, जो आईज में कलर्ड पार्ट होता है, अंदर देखा हमने ब्लैक होल के अंदर भी और अंदर एक को होता है, आप जब ध्यान से देखिएगा। ओके, जस्ट गो ऑन द गूगल एंड यू विल सी द वेरियस पार्ट्स इन योर आईज। कि हमारे आईज जो ये छोटी सी दिखती है, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, सो व्हाट इज द कलर्ड पार्ट दैट व्हाट वी कॉल द कलर्ड पार्ट इन द आई? दैट इज iris. ओके, दैट इज iris. IRIS, iris. The answer is iris. IRIS, iris. Clear? So the answer is iris. Okay, next. These cells carry oxygen through your body. These cells carry oxygen through your body. Okay, the options are, the clues is R blank blank BE blank double O blank C blank blank L blank. ओके, देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये सेल्स है, दैट मीन्स दे आर द सेल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर सेल्स। एंड दीज सेल्स ये क्या करते हैं? दे कैरी ऑक्सीजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जो ये सेल्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। दीज आर रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आंसर, देन आई विल टेल यू समथिंग अबाउट देम। रेड, RED रेड, ब्लड BLOOD ब्लड, सेल CELLS, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं बेटा? जो आपके ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ योर बॉडी। ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये पूरी बॉडी में से, ये ब्लड में होते हैं तो ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाते हैं। ओके, यू नो दैट वी ब्रीथ थ्रू नोज। अगर हम जब नाक से सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, दैट जैसे अभी आप मुझसे वीडियो देख रहे हो या मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन दैट इज आई एम इनहेलिंग, दैट गोज इनटू योर बॉडी एंड दीज रेड ब्लड सेल्स कैरी दैट ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ओके, अभी सांस लेते जो मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो ये ऑक्सीजन है। देखिए अभी तो मैंने एक बार ली थी ना कि सब में पास ऑन हो गई, तो ये रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स होते हैं ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सारी ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है ये पूरी हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं। ओके, सो दैट आवर बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली। क्लियर? सो द आंसर इज रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। Is it clear? Okay. Moving next to the fifth one. This part of the brain controls movement and balance. This part of the brain controls movement and balance. ये देखिए, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हम मूवमेंट करते हैं, या जो हम बैलेंस, अभी जैसे मैं खड़ी हूं यहाँ पे, या आगे पीछे जो चल रही हूं, या जो बोल रही हूं, ये सब जो मूवमेंट है, ये जो हमारे ब्रेन में जो ये पार्ट है, ये सब कुछ ये इसको कंट्रोल करता है, कि ये बताता है कि हाँ अभी मुझे रुकना है, अभी मुझे बोलना है, अभी मुझे ये खड़े होना है, अभी मुझे बैठना है। ऑल दैट फंक्शंस, ऑल दैट थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज cerebellum, that is cerebellum. Okay, so fifth is C dash R
dash B dash dash L dash M. So the answer is cerebellum. CEREBELLUM. The answer is cerebellum. This cerebellum controls, और ये cerebellum जो है ये हमारी जो बॉडी, ये एक ब्रेन का पार्ट है. दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड it controls all the movements और all the बैलेंस. मतलब बैलेंस भी, जैसे हमारी बॉडी में मैं खड़ी हूँ, गिर नहीं रही हूँ कि मुझे पता है मुझे बैलेंस बना के खड़े होना है. ओके, सो जितनी भी हमारी मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, अभी जो भी हम करते हैं, दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस, दैट इज cerebellum. दिस पार्ट, दैट इज cerebellum. ओके, so let's revise all these answers one more time and then we will move on to our next blank. Okay, so first of all let's take a look on this. Okay, the first one is biceps. जो biceps की हम बात कर रहे हैं, that is the top part of our arm. ये हमारी जो बाजू है, हमारा जो हाथ है, उसका सबसे टॉप पार्ट है, टॉप मसल है. The next one is pupil. These pupils allow this pupil is the part of our eyes that allows the light to enter into our eyes. ये जो pupil है, that allows the light to enter in our eyes. The next one is iris. That iris is the colored portion of our eye. जो हमारी आंख के अंदर एक colored portion होता है, that is called iris. The next one is red blood cells. These red blood cells, they carry oxygen to the every part of our body so that our body can function properly. So that each and every part of our body can function properly. So these red blood cells, they carry oxygen to the different parts of our body. Clear? The last one is cerebellum. These cerebellum, what they do, they just control all the movements, all the balances in all the movements of our body. So whatever we do, this cerebellum, that is a part of the brain that controls all our movement. So I hope, is it clear now? Okay. So moving next to the next questions. Okay, I'll just erase it first. Okay. Now moving next to the sixth one. Okay. White blood cells are made here. White blood cells are made here. जैसे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, सेम लाइक दैट व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी. देयर आर टू ब्लड सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स एंड द सेकंड वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स. तो हमें बताना है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये कहाँ बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं हमारी बॉडी में. वो बनते हैं बोन मैरो में. दे मेक इन बोन मैरो, दैट इज प्रेजेंट हियर. द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बोन मैरो है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ अवर बॉडी. ओके, सो जो ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, दैट आर मेड, और जो कि ये कहाँ बनते हैं, दैट आर मेड इन बोन मैरो. ओके, सो राइट एंड द आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. B dash dash E M A blank. Okay, so the answer is bone marrow. BONE, bone marrow. MARROW, bone marrow. Clear? So these bone marrow, in this the white blood cells are made. So हमारे white blood cells है, that are made in this bone marrow. Clear class? So I hope this is clear that the bone marrow is present in the spinal cord of our body. Clear? Moving next to the 7th. This organ is called the voice box. It helps us to produce sound. Okay. ये जो है, जिस organ की हम बात कर रहे हैं, first of all I'm just going to write the blank. Okay, so the clues are L dash R Y dash blank. Okay. So the okay, जिसकी हम बात करें, जिस organ की मैं आपसे बात कर रही हूं, ये क्या है,
This organ is the sound box of our body. That's right now as I'm speaking in front of you. जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, ये जो आवाज है ये मेरे इस ऑर्गन से निकलती है. दैट इज प्रेजेंट इन द नेक. ये मेरे गले में है. दैट इज लैरिंक्स. ओके, दैट इज लैरिंक्स. दैट इज लैरिंक्स. सो दिस लैरिंक्स दिस इज द वॉइस बॉक्स ऑफ अवर बॉडी. जैसे हम कहते हैं ना कि म्यूजिक सिस्टम होता है कंप्यूटर में, जो क्या बोलेंगे, जो कंप्यूटर का स्पीकर्स होते हैं उसकी आवाज सुनाते हैं, वैसे ही दिस लैरिक्स आर द स्पीकर्स ऑफ अवर बॉडी. दिस इज द वॉइस बॉक्स ऑफ अवर बॉडी. ओके, सो द वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ दैट इज ड्यू टू दिस लैरिक्स. ओके, सो द आंसर इज larynx. The answer is larynx. Clear? So this is the sound system of our body. Clear? And all the voices that come out of our neck, of our whatever we are speaking, that is produced due to this larynx. Okay? Next. The next one is raised hairs or spots on the skin caused by cold fear or sudden excitement. Yes, ये तो आप सबने, आई थिंक यू ऑल हैव फेल्ट दैट. आप सबने ये चीज महसूस की होगी. कभी देखते हैं ना कोई बात सुन के, या किसी कोई एकदम से कोई झटका लगता है, कोई ऐसी बात सुनते जिसको आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है. सो व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी पे गूज बम, जो रोंगटे, जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कुछ होती है ऐसी बातें. कभी आप कोई हॉरर मूवी देख लो, या कोई ऐसा कोई एनिमल देख लो, या कुछ ऐसी कोई बात हो जो आपको एकदम से मतलब हैरान करने वाली चीज हो. सो समटाइम व्हाट हैपेंस, ऑल दीज हेयर्स ऑफ अवर बॉडी जस्ट दे स्टैंड लाइक स्ट्रेट. दे जस्ट स्टैंड स्ट्रेट. ओके, तो जो ही हमारी बॉडी, जिसको हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड गूज बम्प्स. इसको हम क्या बोलते हैं? गूज बम्प्स. ओके, सो द ऑप्शन इज लाइक दिस. इट इज G blank S E B blank and so the answer is goosebumps. G-O-O-S-E goose bumps. So these are goosebumps. So what they do, these goosebumps, they are produced whenever we heard a news और समथिंग, कोई एक्साइटमेंट वाली चीज हो या कोई हॉरर चीज देख ली हो, कोई डरावनी चीज हो, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. और जो रोंगटे खड़े होना उसको हम क्या बोलते हैं? गूज बम्प्स. सो द स्पेलिंग इज G-O-O-S-E गूज बम्प्स. B-U-M-P-S bumps. These are goose bumps. Clear? Next, this is the largest internal organ in our body. हमारी बॉडी में जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी. यस, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? यस, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी. ये तो आप सबको पता होगा. दैट इज यू हैव डन इन क्लास 4 ऑल्सो. दैट इज लिवर. LIVER. जो लीवर है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर होता है. एंड दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. क्लियर? सो द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज लिवर. क्लियर? ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द 10th one. The smallest bone in our body called the sternum is present here. यस, जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन है वो हमारी बॉडी के इस ऑर्गन में प्रेजेंट है. जिस ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, द ऑर्गन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, जिस ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, इस ऑर्गन में हमारी जो बॉडी की सबसे छोटी बोन, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गन. दिस इज ईयर. कान हमारे, EAR, ईयर. हमारे कान में हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है. द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स. क्लियर? सो द आंसर इज ईयर. ओके, नेक्स्ट,
Okay, so these are the various different answers of question number 6 to 10. The first one is bone marrow, that is present in the spinal cord of our body. The second one is larynx, the sound system of our body. Goosebumps, जिसको हम रोंगटे खड़े होना, caused due to some excitement or something very horrible, and it can be liver, that is largest internal organ of our body. The last one is ear. The smallest bone of our body is present in this part, that is ear, kan. Clear? So now I'll just erase it and then we will do the next. Okay. The next one is 11th. Okay. So the 11th question says, they are the largest teeth that do not appear until you are an adult. ये हमारे सबसे बड़े दांत होते हैं, लार्जेस्ट टीथ इन आवर माउथ, जिसका मतलब सबसे बड़े दांत होते हैं, और ये तब तक नहीं आते जब तक कि आप एडल्ट नहीं बन जाओ. अभी तो आप बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको ये दांत आएंगे, मतलब टीथ से तब आएंगे. अगर आपको कोई बड़ा भाई बहन है, दे आर 18+ और 20+, जस्ट आस्क देम व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टीथ. अभी उनसे पूछो, पहले वीडियो पॉज करिए, जस्ट आस्क देम. द नेम इज विजडम टीथ, जिसको हम कहते हैं ना अकल वाली जाड़ जिसको बोलते हैं, दैट इज विजडम टीथ. विजडम टीथ. सो द आंसर इज विजडम टीथ. द आंसर इज विजडम टीथ. WISDOM, wisdom teeth. Okay, so the answer is wisdom teeth, जिसको हम अकल वाली जाड़ बोलते हैं, अकल वाले दांत बोलते हैं. Clear? Moving next to the 12th one. This is the protective coating that encloses most nerve fibers. Okay, ये हमारी जो नर्व्स होती हैं उसकी प्रोटेक्टिंग कोटिंग जो होती हैं, जो हमारी नर्व्स है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग. What is the name of that coating? जो हमारी nerves हैं, that are protected by a coating or a layer. What we call them? We call them myelin sheath. The answer is myelin sheath. Myelin sheath. Okay, तो ये हैं, these are the protective layers of our body. Okay, these are the protective layer of our nerves. ये हमारे जो nerves हैं उनकी protecting layer है, and this is myelin sheath. Okay, जो हमारी nerves होती हैं, जो हमारी nerves हैं, they are protected by this coating, that is myelin sheath. Okay, so this was our page number 17. Okay, so now next is a tidbit is also there. During a lifetime of 70 years, the heart will beat about 2.5 billion times and pump more than 132 million liters of water. Yes, देखिए, जो हमारी, अगर हम 72 years तक, जो एक किसी पर्सन है जो कि 72 years तक जिंदा रहता है, जो उसका हार्ट बीट है, जो उसकी दिल की धड़कन है, वो कितनी बार चलती है, दैट इज अबाउट 2.5 बिलियन टाइम, मतलब 250 बिलियन टाइम दैट वो चलती है. एंड जो हमारा ब्लड है वो कितना ब्लड पंप करता है, नियर अबाउट 132 मिलियन लीटर्स. 132 मिलियन, मतलब मिलियन लीटर्स ऑफ ब्लड इज पंप्ड by our heart in the lifespan of 72 years. Okay, so I think this is a very big, very long और very मतलब बहुत ज्यादा है ये तो. Okay, but अच्छी बात है ये ज्यादा है तो. Okay, so this was our page number 17. Okay, so now moving next to the next page, that is page number 22. So kindly open your books at page number 22. Okay, so the name of the chapter is Great Indian Scientists. So now the chapter number, page number 22 is Great Indian Scientists. So that means now we are going to discuss about some of the great scientists of India. Okay, जो पुराने scientists हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. Okay, so let's begin with this. Okay,
Okay, use the clues to identify Indian mathematicians and the scientists whose contribution have benefited humanity through the ages. So अब देखिए अभी यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं. क्लूज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनके फॉर्म में उन्होंने हमें क्लूज दिए हैं. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दीज साइंटिस्ट जो उन्होंने इन्वेंशंस की हैं मैथमेटिक्स और साइंस की फील्ड्स में. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैथमेटिशियंस एज वेल एज साइंटिस्ट ऑल्सो. ओके, जो साइंस फील्ड में करते हैं उसको साइंटिस्ट बोलते हैं और जो मैथमेटिक्स फील्ड में करते हैं दैट इज मैथमेटिशियंस. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. He was the great ancient Indian astronomer and mathematician known for his work. Okay, so the person we are talking about, he is an astronomer as well as the mathematician. Astronomer that study about the universe. मतलब जो आसमान ये हमारे क्या बोलते हैं ऊपर स्पेस के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं. एंड द मैथमेटिशियन जो मैथमेटिक्स में भी कुछ टर्म्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. Known for his work on the revolution of the earth, predictions of the eclipse and the use of place value in number system, India's first satellite was named after him. Okay, the person or the scientist we are talking about, वो एक astronomer भी है that he was studying space also and he is a great mathematician also. और देखिए उसने क्या क्या साइंस की फील्ड में और मैथमेटिक्स की फील्ड में उसने क्या इनोवेशंस की हैं, इन्वेंशंस की थी. प्रेडिक्शन ऑफ एक्लिप्स कि मतलब जो ये एक्लिप्स मतलब जो ये ग्रहण लगता है उसकी प्रेडिक्शंस के रिगार्डिंग इन्होंने की थी. ऑन द सेकेंड वन इज यूज ऑफ प्लेस वैल्यू इन नंबर सिस्टम. जो हम प्लेस वैल्यूज करते हैं 1 10 100,000, दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम. और जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था वो इनके नाम पे था. सो द नेम ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर और द मैथमेटिशियन इज आर्यभट्ट. दैट इज आर्यभट्ट. ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन. द आंसर ऑफ योर फर्स्ट ब्लैंक इज आर्यभट्ट. आर्यभट्ट. ARYABHATA. आर्यभट्ट. ओके, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन. उन्होंने जो नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यूज की खोज की थी इन्होंने की थी. एंड प्लस ही हैज ऑल्सो मतलब जो एक्लिप्स जो ग्रहण लगते हैं उनकी प्रेडिक्शंस भी दैट वाज आल्सो डन बाय हिम ओनली. Clear? And the first satellite was also named after him, that is Aryabhatta. Clear? Next, he was the principal contributor and the practitioner of the ancient system of Indian medicine called Ayurveda and wrote a book on it. Okay, the second person we are talking about, the second great personality जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक जो इंडियन की एंशियंट मेडिसिन जो हमारी पुरानी मेडिसिन है, दैट मीन्स आपको पता है जो हमारे इंडियन मेडिसिन जो हमारा मेडिसिन सिस्टम है दैट इज मोस्ट ऑफ इट वाज पहले वो आयुर्वेद के ऊपर डिपेंडेंट था ना. तो जो आयुर्वेद है वो कौन लाया था? ये लाए थे द पर्सन द ग्रेट साइंटिस्ट. और उन्होंने उसके ऊपर एक बुक भी लिखी है. सो आयुर्वेदा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम एंड ही हैज ऑल्सो रिटन अ बुक ऑन दैट. व्हाट वाज हिज नेम? हिज नेम वाज चराका. The name was Charaka. 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 His name was Charaka. इन्होंने आयुर्वेदा जो मेडिसिन में हमारी जो मेडिसिन में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. एंड सेकेंड थिंग दैट इन्होंने उस चीज के ऊपर एक बुक भी लिखी है. सो हिज नेम वाज Charaka. 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 क्लियर? छोटा सा चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. हमारे जो इन्वेंशंस हैं उसके बारे में कि वो कैसे किसने शुरू की, उन पर्सनालिटीज के नेम हम यहाँ पे बस मेंशन कर रहे हैं. ओके, सो नथिंग इज कोई डीप नॉलेज मतलब कुछ डीप नहीं है. नॉर्मली किसने इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया वो सब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. क्लियर? थर्ड वन इज हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क वॉज इन शाल्य तंत्र क्योरिंग पेशेंट्स थ्रू सर्जरीज. ओके, He also developed many unique and practical techniques to dissect the human body and study its structure. Okay, so the person or the personality the great personality we are talking about here is इन्होंने जो पेशेंट्स को सर्जरीज के थ्रू जो सर्जरीज होती हैं, जो ये ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, सर्जरीज के थ्रू पेशेंट्स को ठीक करना एंड प्लस प्रैक्टिकल टेक्निक्स के थ्रू
जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब जो आपने सुना होगा जो डॉक्टर्स है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस में वो प्रैक्टिकल चीजें करते हैं कि वो पूरी ह्यूमन बॉडी को एक बार स्टडी करते हैं। तो व्हाट दे डू, दे जस्ट टेक अ डेड बॉडी और उनकी जो बॉडीज को काट के उसके ऊपर स्टडी करते हैं। ओके, सो द डॉक्टर्स ऑल्सो डू दिस। सो जो ये पेशेंट्स को सर्जरीज के थ्रू ठीक करना और इसमें मतलब जो ह्यूमन की बॉडी है उस जो बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये सब किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुश्रुता। द नेम इज सुश्रुता। ओके, सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ह्यूमंस की बॉडी की स्टडी है, दैट मीन जो डॉक्टर्स हैं दैट दे स्टडी, कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए दैट उनको पूरी ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर समझना होगा। अगर उनको सर्जरीज करनी है तो उन्हें पूरी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, सो ये सर्जरीज और ये प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसने इंट्रोड्यूस की थी? दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय सुश्रुता। सो द नाम हिज नेम इज सुश्रुता। सुश्रुता, Sushruta, Sushruta. His name was Sushruta. He introduced the system of surgeries and studying human body. Studying human body structure. Clear? Moving next to the fourth one. Okay, he was an outstanding Indian astronomer and the mathematician who also had a thorough knowledge of Western astronomy. He is known for his book Panch Siddhantika, a detailed study of Western astronomy. एस्ट्रोनॉमर्स जो पता है जो स्पेस की स्टडीज करते हैं, तो ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे, और इन्होंने जो वेस्टर्न हमारी कंट्रीज हैं उनकी जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर स्टडी किया था। ओके, इनका जो ग्रेट कंट्री मतलब उनको स्टडी करके इन्होंने इंडिया में एस्ट्रोनॉमी जो एक न्यू इन्वेंशंस और न्यू इनोवेशंस लाई थी, दैट वाज ऑल डन बाय हिम। और इन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, और बुक का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। द नेम ऑफ द बुक इज पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांत होते प्रिंसिपल्स। ओके, तो इन्होंने एक बुक लिखी है वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है उसकी जो एस्ट्रोनॉमी जो स्पेस की रिसर्चेस है उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। सो व्हाट वाज हिज नेम? द नेम वाज वाराहमिहिरा। तो बेटा इनके नेम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, दैट यू हैव टू लर्न। ओके, सो द नेम वाज वाराहमिहिरा। वाराहमिहिरा। ओके, सो ही हैज इंट्रोड्यूस्ड इन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया था। ओके, एंड ही हैज रिटन अ बुक ऑल्सो दैट इज सिद्धांतिका, नॉट पंचतंत्रिका, पंच सिद्धांतिका। क्लियर? फिफ्थ वन, ही वॉज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ द 7th century। ओके, ये एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे और ये एक मैथमेटिशियन भी थे 7th century में, जब हमारी 7th century थी तब की बात करें हम। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड्स द बुक लाइक Bhaskariya and the Laghu Bhaskariya that dealt with all the longitudes of the planets, solar and lunar eclipse and the phases of the moon. Okay, the person we are talking about him is, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी बेटा। इन्होंने जो प्लैनेट्स के रिगार्डिंग स्पेस में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, और लूनर और सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और जो मून के फेजेस हैं, मतलब मून कैसे चेंज होता है, कब होता है, इन सब की स्टडी की थी। ओके, ही हैज स्टडीड ऑल दैट थिंग्स। और कब की थी? 7th century में, मतलब बहुत साल, मतलब कितने साल पहले। ओके, तो देखिए उस टाइम में उन्होंने ये मून, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, फेजेस ऑफ मून्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में, स्टार्स, इन सब के बारे में स्टडी की थी। ओके, और इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं, महाभास्करिया एंड द लघु भास्करिया। ओके, सो हिज नेम वाज आल्सो भास्कर, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द बुक इज भास्करिया। ओके, सो द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट इज भास्कर फर्स्ट, सो ही वाज भास्कर फर्स्ट। ओके, इन्होंने 2 बुक्स लिखी है। तो ही हैज स्टडीड अबाउट ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स,
lunar and solar eclipse. So what was his name? His name was Bhaskar first. Clear? Moving next to the sixth one. He was an ancient Indian astronomer of the 5th century. Okay. अब जब हम जिनकी बात करें that is from the 5th century. तो इससे पहले हमने भास्कर इनकी बात की थी. He belongs to the 7th century. और जो 5th century की उनसे भी पहले की मतलब जो एस्ट्रोनॉमर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 5th century के थे. Okay. Known for his book ब्रह्म सपूता सिद्धांता. An astronomical work, he defined zero as a result of subtracting a number from itself. Okay, so देखिए जो एस्ट्रोनॉमर है ये 5th century के थे. Okay, and उन्होंने एक बुक लिखी थी. The name of the book was ब्रह्म सपूता सिद्धांता. जो बुक का नेम था ब्रह्म सपूता सिद्धांता. और एक इन्होंने जो जीरो है, इन्होंने एक बताया था कि अगर जीरो है, अगर हम उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, so that means कि उस नंबर को हम खुद से डिवाइड करते, मतलब जीरो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जीरो अगर हम किसी नंबर को खुद से डिवाइड, आपको पता ना 5 - 5 इज 0. सो दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय हिम ओनली. सो व्हाट वाज हिज नेम? हिज नेम वाज ब्रह्मगुप्त. ब्रह्मगुप्त, BRAHM, ब्रह्मगुप्त. Brahmagupta. Okay. So these are the names of the 6 various Indian personalities, great Indian scientists. Okay, the name is Aryabhat, Charaka, Shushruta, Varamira, Bhaskara first, and the Brahmagupta. Okay. So this was your page number 22, and I hope you enjoyed this chapter. That आपको पता लगा किसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया. Okay, so this was your today's session, and tomorrow I'll see you again with some new chapters of GK. So till then everybody just study hard and be safe. Have a good day.